بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ آج ہم انشاءاللہ بإذن اللہ آیت نمبر 4 کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 5 کو بھی دیکھیں گے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ مالکی، مالک ہے، میم لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یوم جو ہے دن کا، اور دن کے لیے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یوم عید، یوم آخرت۔ یوم جو ہے وہ واحد ہے اور ایام جو ہے اس کی جمع ہے، اور یہ قرآن میں 405 ٹائم جو ہے ریپیٹ ہوا ہے۔ اگر آپ کو یوم اور ایام سمجھ آ جاتا ہے تو آپ نے قرآن کے 405 ورڈ جو ہے وہ یاد کر لیے، آپ کو ان کا ترجمہ آنے لگ گیا ہے۔ آگے ہے الدین، دین بدلے کے دن کا، اور بدلہ جو ہے نظام زندگی کے لیے بھی آتا ہے اور دین اسلام کے لیے بھی آتا ہے اور بدلے کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ 92 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں 405 الفاظ یوم کو یاد کرنے سے، سمجھنے سے آپ کو آگے 92 الفاظ قرآن کے آپ کو الدین سمجھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت سے میرے لیے سبق کیا نکلتا ہے، یا اس سے کون سی عادات کو میں اڈاپٹ کر سکتی ہوں، لے سکتی ہوں۔ مالکی یوم الدین، دین کے 2 معنی میں نے آپ کو بتائے کہ بدلے کا دن، جو اچھا کام کرے گا اس کا اچھا بدلہ نکلے گا، اور جو برا کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ دنیا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اچھا کرے گا اس کا بدلہ اچھا ہے، جو برا کرے گا اس کا انجام برا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے کہ اسلام ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ جب قیامت آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ اس دن مالک ہوگا، ہی از دا اونر، اور اسی کی حکومت چلے گی، اور وہی سب کے درمیان اس دن انصاف کرے گا۔ آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے، کہہ لیں کہ کچھ اختیار دے دیا ہے۔ اس دن اسی کے پاس سارے کا سارا اختیار ہوگا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں پر صرف اور صرف اسی کی سفارش چلے گی جس کو اجازت دی جائے گی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہے۔ آدمی اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، مطلب کہ جتنے لوگوں کو وہ جانتا ہے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ بس اس دن ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا انشاءاللہ، ہماری اچھائیوں کا بدلہ اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے سوال پوچھ لیا جائے، ہمیں سزا ملے۔ اگر ہم سے پوچھ لیا گیا تو ہم کیسے جواب دیں گے کہ اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا صرف اپنی رحمت سے؟ اب ہم اس سے معافی کا یا جنت میں جانے کا سوال کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اور وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہاں سے پھر ایک اور عادت نکل آئے گی، عادت نمبر 7، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کرنا ہے، اور وہ بیکار کاموں میں نے ضائع نہیں کرنا اپنا، جو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دی ہوئی ہے، وقت دیا ہوا ہے۔ ہر اچھا کام میں نے اس لیے کرنا ہے کہ آخرت میں جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی، اللہ انصاف کرنے لگے گا تو میری اس وقت دیے ہوئے وقت کو یا میری اس نیکیوں کو وہ ضائع نہیں کرے گا، اس کا مجھے بہترین اجر انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ اب تصور کرتے ہوئے، احساس رکھتے ہوئے اور دعا کے ساتھ ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ آپ سب بھی پریکٹس کیجئے پلیز۔ مالکی یوم الدین، میں پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے پریکٹس کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، اور منیمم آپ نے 10 ٹائم پڑھنا ہے۔
मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। अगली आयत जो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही, इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझसे ही, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। कितनी खूबसूरत दुआ है, सुभान अल्लाह। इय्याका, इय्या एंड का, इय्या ही, तेरी ही, और का तेरी, मतलब कि तेरी ही, इस पे इम्फिसाइज किया जा रहा है। और इया का कुरान पाक में 24 टाइम आया है। जब हम नअबुदु की बात करते हैं, नअबुदु आइन बा दाल अब्द से है, और हम उर्दू में भी कहते हैं इबादत, आबिद किसी का नाम है, माबूद के फेमिलियर नाम है, ये फेमिलियर अल्फाज हैं हमारे लिए। और इबादत होता क्या है? इबादत जो आम हालात में हम कहते हैं कि जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज अदा करना, मतलब कि इसके लिए शर्त है ना कि नियत हमारी दुरुस्त होगी तो ये इबादत हमारी कबूल हो जाएंगी। इसके अलावा देखें इबादत कौन कौन सी चीज़ें जो है इबादत के क्राइटेरिया में आती हैं। दावत देना, नसीहत देना, जहाद के लिए निकलना, जहाद करना, फिर जहाद के ही किस्म का हो जाएगा। अल्लाह की अताअत में भरपूर कोशिश करते रहना, इल्म हासिल करना जो आप अभी कर रही हैं, कमाना, हलाल रोजी के लिए घर से निकलना भी इबादत है। दूसरों की खिदमत करना, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना, दूसरों के काम आना, ये भी इबादत है। एंड मेनी मोर थिंग्स, आप इससे बहुत ज़्यादा आगे इसको बढ़ा सकती हैं। मगर सबसे पहली बात जो कर दी गई वो नमाज, कि जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन अपने को ढा दिया, दीन को ख़त्म कर दिया। आगे आ गया व इय्याका, व और इय्याका तुझसे ही, फिर इन्फेसाइज किया जा रहा है। वा और फा, बहुत से हम जुमले आगे पढ़ेंगे कि उसमें वाव और फा बिगनिंग में आ जाता है। फिर आगे आ रहा है नस्ताइन, अगेन हम मदद चाहते हैं। इस्तानत, आनत, आउन, तावन, मावन, ये सारे वर्ड हम उर्दू में इन सबको जानते हैं। और देखिए नअबुदु एंड नस्ताइन दोनों में नून लफ्ज इस्तेमाल और जमा आ रहा है, हम। अब देखिए इस पूरी आयत को सामने रखिए, आयत नंबर 5 को, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताइन। पूरा तसव्वुर करें, एहसास करें, ठीक है। इससे हम सबक देखने की और लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, फिर एहतसाब की नीयत करें, फिर उसके लिए प्लान करें, फिर उसको आगे दूसरों तक पहुंचाने का तहिया करें। अब हम देखते हैं कि इस आयत से हमारे लिए सबक क्या निकलता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम इसकी बंदगी करें, उसकी इबादत करें। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह अज़ारियात की आयत नंबर 56 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमाते हैं। फिर इबादत अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म पर चलना, उसकी नाफरमानी से बचना, ये इबादत में आ जाएगा। और अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज अदा करना, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाना, लोगों को इल्म देना, सीखना और सिखाना, हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत करना, वगैरह वगैरह, ये सब इबादात हैं। अल्लाह ने इन सबको इबादात कहा है। इनमें नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। जिसको जानबूझकर जो कोई छोड़ेगा तो उसको कह दिया गया कि वो काफिर है, वो काफिर बन जाता है, इनकार करने वाला बन जाता है। हम इतने कमज़ोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर हम अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकते, हम ये गिलास नहीं उठा सकते, हम इसके अंदर पड़ा हुआ पानी एक उठा के सिप करके उसको सॉलो नहीं कर सकते। तो अल्लाह की इबादत की मदद के बगैर कैसे कर सकते हैं? उसकी मदद, अल्लाह की मदद हमें चाहिए अल्लाह की इबादत के लिए भी। इसलिए इस एहसास के साथ ये आयत पढ़ें कि अल्लाह, इस नमाज को जिसके लिए मैं खड़ी हुई हूँ, जिसमें मैं सूरह फातिहा पढ़ रही हूँ, इसके बाद हर काम को करने में मुझे तेरी मदद चाहिए। हर मुश्किल और हर परेशानी के वक़्त मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं तेरी मदद की मोहताज हूँ, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरी इबादत के लिए भी मुझे तेरी मदद चाहिए, ऐसी इबादत करने के लिए तुझे पसंद हो उसके लिए भी मुझे तेरी मदद चाहिए।
यहाँ से हमारे पास आदत नंबर 8 भी आ जाती है कि हर काम में नियत हो इबादत की। दरअसल इंसान के 2 हिस्से हैं ना, एक है जिस्म और दूसरा है रूह। जिस्म को खाना चाहिए होता है तो हम खाना प्रोवाइड करते हैं तो जिस्म को तकवीयत मिलती है। इसी तरह रूह की इबादत तकवीयत का जरिया बनती है। रूह को इबादत की जरूरत है, जिक्र अज़कार की जरूरत है, अल्लाह के कुर्ब की जरूरत है। जब तक अल्लाह के या अल्लाह की सही तरीके से इबादत नहीं हम करते ना, उसको सुकून नहीं मिलता। हाँ, इंसान को दुनियावी कामयाबी मिल सकती है, अगर दुनिया में कुछ मिल जाए तो सुकून नहीं मिलता, ये बात आप जान लें। तो यहाँ से साथ ही हमारे लिए आदत नंबर 9 भी आ गई कि हर काम के लिए अल्लाह सुब्हान तआला से मदद मांगनी है, वो काम किसी भी तरह का हो। जैसा कि अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बाकी नबियों को मांगने के लिए कहा और उन्हें दुआएं मांगी और हमें सिखा भी दी। और कुरान पाक में तकरीबन हर पेज पे, हर सफ़े पे हमें उनकी नबियों की और अंबियाओं की दुआएं मिलती हैं। मेरा यहाँ पे आप लोगों से मशवरा है, मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी हदीस सही मुस्लिम की है जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, हर नमाज की हर रकत में इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें और पूरे शऊर के साथ, खुशियों के साथ नमाज पढ़ें, तो फिर देखें आपको कितना मज़ा आएगा। हदीस का मफहूम है, सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, मैंने नमाज अपनी और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है, आधी मेरी और आधी मेरे बंदे के दरमियान, और मेरे बंदे को मैं वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगता है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हमिदनी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अथना अलैया अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मज्जदनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मैं और मेरा बंदा, तीसरा कोई नहीं है इसमें, और जो कुछ वो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा। और जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के लिए है, वो जो कुछ मांगेगा मैं उसको दूंगा। अब यहाँ पे बताया ही जा रहा है, मेरा यकीन, मेरा तवक्कुल, मेरे मांगने का अंदाज, जिस यकीन के साथ मैं अपने रब से मांगूंगी मुझे मिलेगा। सुकून मांगूंगी, अल्लाह की का कुर्ब मांगूंगी, दुरुस्त रास्ता मांगूंगी, सही फैसला करने की हिम्मत मांगूंगी, अल्लाह के दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक मांगूंगी, अल्लाह सुब्हान तआला मुझे देंगे, ये मेरे रब का वादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस कुदसी कहा जाता है इसको, तो ये गलत नहीं है। कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर है, मेरे मांगने में कमी है, मेरे तरीक़ेकार में कमी है, मेरी समझ में कमी है, मैं उस तरीके से, उस समझ के साथ, उस मोहब्बत के साथ, उस यकीन के साथ नहीं मांग रही। जब मैं मांगूंगी तो मेरा रब ज़रूर मुझे देगा, इस बात का यकीन रखना है। आज जो हमने आदत सीखी उसमें आदत नंबर 7 क्या है कि मैंने हर काम आखिरत को सामने रखते हुए करना है। आदत नंबर 8, हर काम में नियत जो भी होगी वो इबादत की होगी। और आदत नंबर 9, हर काम में अल्लाह की मदद मांगनी है पूरे यकीन के साथ, इंशाअल्लाह। चलिए अब इंशाअल्लाह ताला इन 2 आयात की हम तजवीद देख लेते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, जब हम मालिकी यौमिद्दीन पढ़ते हैं तो ज़ेर को लंबा करते हैं या नहीं करते, या ज़्यादा ही लंबा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मालिकी, या फिर हम ऐसा करते हैं कि मा को तो 2 काउंट करते हैं, उसकी जो ज़ेर है माले के, उसको मजहूल, ज़ेर को मजहूल कर देते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? मालिकी, लाम कसरा ली, काफ कसरा की, मालिकी। आगे जो है वाओ लय्यिना है, या से पहले, वाओ से पहले जब ज़बर आती है तो वो वाओ लय्यिना हो जाता है, क्योंकि कायदा ये है कि वाओ से पहले पेश आएगी तो वाओ को हम 2 की गिनती तक लंबा करेंगे।
اور वाओ-लीन की अदायगी होंठों के दरमियान सुराख को गोल कम रखते हुए हम करते हैं। फॉर एग्जांपल या फत्था वाओ सुकून याऊ, हम कहते हैं यौमी यौमी, उसको वहीं पे या एंड यौमी ऐसे करके पढ़ते हैं। नो, याओ याओवी नहीं करना, यौमी करना, बल्कि या फत्था वाओ सुकून याऊ यऊ यऊ। मालिकी यौमिद्दीन। ओके, वाओ लयीना के लिए क्या कानून है कि जज़म वाले वाओ से पहले अगर जबर हो तो वो वाओ लयीना हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है बा फथा वाओ सुकून बाऊ, ता फथा वाओ सुकून ताऊ, या फथा वाओ सुकून याऊ। कि अगर तो पेश होगी तो हम 2 काउंट करेंगे, और अगर जबर आ रही है वाओ से पहले, वाओ साकिन है, तो उसको हम फिर वाओ लय्यना पढ़ेंगे, सॉफ्टली वो अदा होता है। आगे क्या है, यौमिद्दीन। जब मिद्दीन को हम पढ़ते हैं, इसमें भी क्या हम गलती करते हैं कि याद जब इसको मिद्दीन नून में आवाज चली जाती, नाक में लेके जाते हैं, और इसकी जो शद्दा है उसको हम क्लियर नहीं पढ़ते, उसको मजहूल पढ़ते हैं, और कसरा को भी मजहूल पढ़ देते हैं। जैसे मालिकी यौमिद मेदीन मेदीन है ना, दाल की शद्दा को नहीं क्लियर पढ़ते और मीम की कसरा को सही नहीं पढ़ते। अब इंशाल्लाह ताला हम मिल के इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपने वाओ के लिए अपने लिप्स को राउंड करना है, लेकिन पेश की तरह राउंड नहीं करना, सिर्फ वाओ का अपने मखरिज पे जाना है। मीम की जो कसरा है उसको, काफ की कसरा को और लाम की कसरा को आपने मजहूल नहीं करना, फैलाना नहीं है। क्विक और सॉफ्ट और बारीक पढ़ना है। माँ को 2 की गिनती तक लंबा करना है। दाल की जो शद्दा है उसको मजबूती से पकड़ना है, और दीन जो है या नून, उसका साउंड जो है नाक में नहीं लेके जाना, क्लियर पढ़ना है। अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए इंशाल्लाह। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। आगे क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका हरूफ मद को हम क्या करते हैं, या तो कम पढ़ते हैं या ज्यादा पढ़ देते हैं। काफ को ऊपर फत्ता है, या तो हम उसको लंबा कर देते हैं या फिर हम उसको छोटा कर देते हैं बिल्कुल ही। इय्याका पूरा हक देना है मद लेटर को भी, और काफ के ऊपर जबर है उसको मद बनाना नहीं है। मद को मद करना है और जिसके ऊपर हरकत है उसको मद नहीं बनाना। आगे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है कि इय्याका, हमने ऐसे नहीं पढ़ना इय्याका, या को छोटा कर देना और काफ को लंबा कर देना, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। आगे क्या है, शद को उसको मजबूती से ना पकड़ना, कि उसको ऐसे पढ़ देना जैसे उसके ऊपर शद नहीं है। इय्याका इय्या, या पहली जो साकिना है उस पे नबर होगी और दूसरी जो है उसको मद बनाया जाएगा। इय्याका इय्याका, और काफ को लंबा नहीं करना। 2 काउंट की गिनती मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल बा है, तो बा के साथ बा के ऊपर जबर है, उसके साथ खाली अलफ आएगा तो वो 2 काउंट हो जाएगी। ठीक है, 2 काउंट के लिए आप ये देखें, अगर बा फत्था के साथ है तो कितना पढ़ा जाएगा, और अगर बा फत्था अलिफ सुकून के साथ है तो उसको 2 काउंट की गिनती तक लंबा किया जाएगा। फॉर एग्जांपल बा ता फा क़ाला क़ाला। सो ये नहीं होगा कि क़ा को मैं लंबा कर रही हूँ, ला को मैं छोटा कर रही हूँ। बा बा, ता ता, क़ा क़ा, क़ाला क़ाला। इसी तरह बी है, बा कसरा या सुकून बी, तो बी बी, ती ती, सिराती 1 हरका के साथ, सिराती 2 हरका के साथ। इसी तरह बू है, बा के ऊपर पेश है, उसके बाद जब वाओ साकिना आएगी उसको 2 की गिनती तक लंबा करेंगे। कैसे होगा, बादमा बू, बादमा वाओ सुकून बू, तू तू,
अतूबु, फतूबू। तो आपने ये कोशिश करनी है, जो मद लेटर है उसको मद प्रोनाउंस करना है, और जो मद नहीं है वन हरका है उसको उतना ही रखना है। आगे क्या है, इय्याका, इसको हम मजबूती से शब्द को पकड़ेंगे, हरूफ मुकम्मल अदा करेंगे, जबर को लंबा नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करें, इय्याका, एया नहीं करेंगे, इय्याका, इय्याका। नाबुदु, आइन को पकड़ के रखेंगे, उसको ना नहीं करेंगे, ना नहीं करेंगे, या फिर ये नहीं करेंगे ना बोदो, ना बोदो, नो। अपने नून को, जो नून की फतहा है उसको लंबा नहीं करना है, आइन को है कलकला नहीं करना है, और बा और दाल की जो पेश है उसको फैला के यानी कि मजहूल अंदाज में नहीं पढ़ना, इसका आपने ख्याल रखना है। नाबुदु, नाबुदु, बहुत ऐसे नहीं करना, नाबुदो, नाबुदो, नो। नाबुदु, और देखिए जब हम मजहूल करते हैं ना तो क्या कहते हैं, ना बो, ना बो, अपने लिप्स को राउंड नहीं करते, और दाल के भी लिए राउंड नहीं करते, तो फिर वो उसको क्या हम लंबा बना देते हैं। इसी तरह आगे व इय्याका, इसकी ऑलरेडी हो चुकी है प्रैक्टिस के, या की शब्द को लंबा नहीं करना, और अलीफ को लंबा करना है, काफ की फतहा को लंबा नहीं करना। नस्तईन, नस, नस, नस नहीं करना, नस सॉफ्टली, हम ऐसे कहते हैं नस, नस्तईन, इन हमजा नहीं है, आइन है, उसको मिडिल पार्ट से अदा करना है, और नून को सीन से मिलाना है, लेकिन उस पर झटका नहीं देना, नस नहीं करना। नस्तईन, नस्तईन, नस्तईन। चलिए इंशाल्लाह ताला आगे हम इस पूरी आयत की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपनी नज़र को स्क्रीन पे रखें। मैंने तलफ़ुज़, उनकी जो अदायगी और किस किस चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो सामने है, उस पर नज़र रखते हुए अपने तलफ़ुज़ की अदायगी पे गौर करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या की शद्दा को पकड़ना है, 2 काउंट करना है, काफ की फतहा को मजहूल नहीं करना, सॉफ्टली उसकी अदायगी करनी है, उस पर मद नहीं बनानी, ना आइन को कलकला नहीं बनाना, उसको पकड़ना है, बा और दाल की पेश को मजहूल नहीं करना, वा को लंबा नहीं करना, इया का अगेन सेम शराइत है उसके लिए, नस को, नून को जंप दे के सीन पे नहीं बनाना, बल्कि सॉफ्टली ज्वाइन करना है, नस, ता को लंबा नहीं करना, आइन को आइन अदा करना है, हमजा की आवाज नहीं देनी, और एंड पे आवाज नाक में नहीं लेके जानी। फिर गौर से सुनिएगा और फिर प्रैक्टिस करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब अल्हम्दुलिल्लाह से इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। बरकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।